کوئٹہ کنٹونمنٹ میں اسکول سیل کرنے کا معاملہ اور ملک بھر کے کنٹونمنٹ سے نجی تعلیمی اداروں کے بے دخلی کا فیصلہ پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ معزز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 18 دسمبر 2021 کو کنٹونمنٹ بورڈ کوئٹہ کی طرف سے کنٹونمنٹ حدود میں واقع نجی تعلیمی اداروں کو سیل کیا گیا، جو کہ معزز سپریم کورٹ کے 2017 اور 2018 کے فیصلوں کے برعکس تھا۔ سپریم کورٹ کے واضح احکامات تھے کہ 31 دسمبر 2021 تک ریزیڈنشل ایریا سے تمام پرائیویٹ سکولز کو بتدریج شفٹ کیا جائے۔ یہاں یہ بات توجہ طلب ہے کہ سکولز کمرشل سرگرمی نہیں ہے بلکہ امیونٹی ہے، اس کا مطلب سروسز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل سرگرمیوں کو کنٹونمنٹ کے ایریا سے ختم کر دینے کا کہا گیا۔ یہ سپریم کورٹ کا 2017 اور 2018 کا فیصلہ ہے۔ اس کے برعکس کوئٹہ کنٹونمنٹ میں تمام کمرشل سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ میرا کوئٹہ کنٹونمنٹ سے یہ سوال ہے، کیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیا گیا؟ کیا یہ فیصلہ صرف اسکولوں کے لیے تھا؟ اگر نہیں تو پھر یہ تعلیمی دشمنی کیوں؟ اس فیصلے کا اطلاق صرف نجی تعلیمی اداروں پر کیوں کیا گیا؟ سی بی اسکول ایسوسی ایشن نے کنٹونمنٹ بورڈ کے اس اقدام کے خلاف ہائی کورٹ بلوچستان سے رجوع کیا، اور الحمدللہ معزز ہائی کورٹ نے ہمارا کیس سنا اور بورڈ کوئٹہ کو 31 دسمبر 2021 تک کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ ہماری ایسوسیشن نے چیف ایگزیکٹو کنٹونمنٹ بورڈ سے ملاقات کی اور ان کو سپریم کورٹ کی ڈپٹی رجسٹرار کا نوٹس جمع کروایا، جس کے مطابق 5 جنوری 2022 کو سپریم کورٹ میں دائر ریویو پٹیشن کی سنوائی ہونی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سپریم کورٹ کے ہمارے وکلا جناب حامد خان صاحب اور اخلاق آوان صاحب کا سرٹیفکیٹ بھی جمع کروایا، جس سے ہمارے وکلا نے کنٹونمنٹس کو کیس کی سنوائی نہ ہونے تک کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کی استدعا کی۔ ہماری ایسوسیشن کی طرف سے ایک درخواست جمع کروائی گئی جس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر سے 5 جنوری 2022 تک کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس سب کے باوجود 1 جنوری 2022 کو کنٹونمنٹ بورڈ کوئٹہ نے ایک بار پھر پھرتیاں دکھاتے ہوئے نجی تعلیمی اداروں کو سیل کر دیا، جبکہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ نے اپنی کارروائیوں کو 5 جنوری 2022 تک مؤخر کر دیا ہے۔ تو پھر کوئٹہ کنٹونمنٹ میں موجود نجی تعلیمی اداروں سے یہ امتیازی سلوک کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ تعلیم دشمن پالیسی صرف کوئٹہ کنٹونمنٹ کے نجی سکولز کے ساتھ کیوں؟ ہم چیف منسٹر بلوچستان، کور کمانڈر بلوچستان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر توجہ دیں اور ذمہ داران سے جواب طلب کریں۔ اگر 5 جنوری 2022 تک کوئٹہ کنٹونمنٹ باقی پاکستان کی کنٹونمنٹس کی طرح معزز عدلیہ کے فیصلے کا انتظار کر لیتی تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ ایک ادارہ اور اس کا اعتماد بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ اس طرح بار بار اداروں کو سیل کرنے سے ان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ موسم سرما کی تعطیلات کی وجہ سے کئی سکولز بند ہیں، لیکن بہت سے سکولز میں او اور اے لیول حفظ قرآن پاک کی کلاسز ہو رہی ہیں، اور کئی اکیڈمیز او لیول اور اے لیول اور ایف ایس سی کے امتحانات کی تیاری کروا رہے ہیں۔ ان بچوں کے امتحانات مارچ کے آخر میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا بچوں کی تعلیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر صاحب 3 دن کا وقت نہیں دے سکتے تھے، جبکہ باقی کنٹونمنٹس نے یہ وقت دے دیا ہے؟ ایکسپریس راولپنڈی 2/1/2022 کی خبر اس بات کا ثبوت ہے۔ ہماری ایسوسیشن کا کنٹونمنٹ بورڈ کوئٹہ سے یہ گلہ ہے کہ ہم کنٹونمنٹ بورڈ ایریا میں سکولز قانونی حیثیت سے اور بیف کی این او سی کے تحت چلا رہے ہیں اور کنٹونمنٹ کی ٹیکس بھی باقاعدگی سے ادا کر رہے ہیں۔ آج جب ہم پہ مشکل وقت آیا تو بجائے اس کے کنٹونمنٹ ہمارا ساتھ کھڑا ہوتا اور ہمارا ساتھ دیتا، مگر ادارے نے رائے فرار کو زیادہ ترجیح دی، ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اور ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سی بی اسکول ایسوسیشن کنٹونمنٹ بورڈ کوئٹہ سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں ایمنٹی پلاٹس کی صورت میں نجی تعلیمی اداروں کو جگہ فراہم کرے، یا پھر ان بچوں کی تعلیم کی خاطر ہمیں کنٹونمنٹ بورڈز کی حدود میں ایجوکیشن کمپلیکس بنا کر دے تاکہ نجی تعلیمی اداروں کو وہاں بتدریج شفٹ کیا جا سکے اور تعلیم کا نقصان نہ ہو۔ سن 2017 میں ہارلے اسٹریٹ میں رہائشی پلاٹ پر اسکول کی تعمیر اور بعد ازاں راولپنڈی کینٹ سے کمرشل نقشے کی منظوری کی ایک مقدمے کے فیصلے میں سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ مسٹر جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مسٹر دوست محمد خان نے اپنے فیصلے میں تمام کنٹونمنٹ انتظامیہ کو ہدایت جاری کی کہ کنٹونمنٹس کی حدود میں واقع تمام نجی تعلیمی اداروں کو رہائشی علاقوں سے بتدریج نکال کر کمرشل علاقوں میں منتقل کیا جائے۔ اس فیصلے پر نجی تعلیمی اداروں کے مالکان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اسکول مالکان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے راولپنڈی کی مختلف تنظیموں پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہم سب کے لیے حیران کن تھا، اور اس لیے کہ معاملہ 2 فریقین کے مابین تھا اور فیصلہ ملک کے 42 کنٹونمنٹس کے لیے آ گیا۔ جولائی 2018 میں چیف جسٹس نثار صاحب نے از خود نوٹس دیتے ہوئے ان تعلیمی اداروں کو 3 سالوں کی مہلت دے دی۔
दे दी। मोहलत 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म हो गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सन 2017 के फैसले और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने अज खुद नोटिस पर नजरसानी की अपीलें दायर की, जिस पर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि दोनों मौक़ों पर प्राइवेट तालीमी इदारों को नहीं सुना गया और एक तरफा फैसले सुनाए गए। इन कंटोनमेंट्स की हदूद में चलने वाले तालीमी इदारे तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते रहे हैं। सन 2000 तक कैंट की हदूद में तालीमी इदारा खोलने के लिए स्टेशन कमांडर से NOC लिया जाता था। फेडरल तालीमी बोर्ड से अलहाक की शराइत में से एक शर्त तालीमी इदारे का कैंट की हदूद में होना लाजमी था। तमाम निजी तालीमी इदारे अपने क़याम से लेकर अब तक कैंटोनमेंट बोर्ड को तमाम किस्म के टैक्सेस देते आ रहे हैं। मुल्क भर के 42 कैंटोनमेंट बोर्ड निजी तालीमी इदारों से रेवेन्यू की मद में करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हैं। फैसले की इतलाक की सूरत में नुकसानात: 8,300 तालीमी इदारे बंद हो जाएंगे, 40 लाख बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हो जाएंगे, 4 लाख असातिज़ा बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों ख़ानदान मुआशी मसाइल के गर्दाब में फंस जाएंगे, निजी शोबे से वाबस्ता हज़ारों लोगों की अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। वालिदैन को अपने मासूम बच्चों को तवील मुसाफत तय करके कैंट से बाहर स्कूलों के लिए जाना पड़ेगा। डोर स्टेप की बजाय बच्चों को स्कूल भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट लगवाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक के मसाइल अलावा माहौलियाती आलूदगी का सबब बनेगी। असातिज़ा, वालिदैन और बच्चे नफसियाती मसाइल से दो चार हो जाएंगे। बच्चों के लिए सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो जाएंगे। निजी तालीमी इदारों के ख़त्म होने से कैंट बोर्ड को गैर मामूली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। गुजारिशात: चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हसास मामले पर फौरी तौर पर नोटिस ले। जब तक हमारी नज़रसानी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं दे देती, इस वक्त तक कंटोनमेंट निजी तालीमी इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। कंटोनमेंट की तरफ से निजी तालीमी इदारों के खिलाफ बाद इक़दाम आइन से मुतसादिम हैं। कंटोनमेंट अमला की तरफ से सिर्फ तालीमी इदारों को नोटिस जारी करना अदालती अहकामात की गलत तशरीह और निफाज है। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से निजी तालीमी इदारों की मुंतकली के मामले पर स्टेक होल्डर्स से मिलकर कोई भी काबिल अमल हल निकाले। कैंटोनमेंट ने सिर्फ तालीमी इदारों को बेदखली के नोटिस देने पर इक्तफा किया है और तालीमी इदारों के लिए किसी मुतबादिल जगह की न तो निशानदही की और न ही इसके मुतल्लिक़ गौर की है। हुकूमत से पुरजोर इस्तदा है कि वो 40 लाख बच्चों की तालीमी मुस्तकबिल की फ़िक्र करे और बेहतर हल तलाश करने में निजी तालीमी इदारों के रहनुमाओं के साथ मिल बैठ कर सोच विचार करे। हुकूमती और इदारों से टक्कर ली जा सकती है, अदालतों से नहीं। हम कानून का एहतराम करते हैं लेकिन फ़ैसला साजों पर हैरत है। हमें कामिल यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी तालीम पर समझौता नहीं करेगी। सिर्फ केस को बेहतर अंदाज में पेश करने की ज़रूरत है। वालिदैन घर के करीब बच्चों को बेच कर बच्चों को महफूज तस्वुर करते हैं। कैंट बोर्ड की हदूद का तयन नागुज़ीर है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और TMAs की गफलत और बर वक्त एक्शन न लेना बड़ी वजह है। इसके लिए इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में 4 मिलियन बच्चों को तालीम की फराहमी मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। निजी स्कूल्स ने हुकूमत के बोझ को कम किया है। मुत्तलिका केस में निजी इदारों को पार्टी बनाए बगैर फैसला सादिर किया गया। मुल्क में कोरोना की वजह से स्कूल्स बंद रहने से इस केस पर पेशरफ्त नहीं हो सकी और न ही कैंटोनमेंट बोर्ड ने मुतबादिल जगहों का इंतजाम किया। वालिदैन ने भी अदालत के फैसले पर रिट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस्लाहात लाने तक मौखर कराने पर जोर दिया है। हमें अल्लाह ताला की मेहरबान ज़ात के बाद अपनी आज़ाद मुअज़्ज़ज़ अदलिया पे यकीन है कि वो हमारी इस अपील को इंसाफ और रहम की नज़र से देखेगी और इस मुल्क के 40 लाख बच्चों, 4 लाख असातिज़ा कराम और लाखों ख़ानदानों को मुस्तकबिल को महफूज बनाएगी। अल्लाह हम सब का हामी नासिर शुक्रिया। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि 8,300 स्कूल हैं। 8,000 सिर्फ लाहौर कैंट में 1,000 स्कूल है और आपकी पिंडी में 2,294 स्कूल्स हैं और एक स्कूल में अगर आप एवरेज भी 500 बच्चा लगा दें तो मेरे ख्याल में तादाद बिल्कुल 40 लाख 4 मिलियन स्टूडेंट्स बनते हैं। बिल्कुल। अब आपको मैं एक और बात बताऊं, इस वक्त जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं वो पता है कितने? आपको 2 करोड़ 28 लाख बच्चे हैं। तो ज़ाहिर है इससे ज़्यादा बच्चे फिर पढ़ रहे होंगे, तो 40 लाख आपके कंटोनमेंट बोर्ड में बिल्कुल बनते हैं। जी बिल्कुल, आपका सवाल ज़बरदस्त। हमने उनको कि हमें 5 जनवरी तक जब तक हियरिंग होगी आप हमें छोड़ें। हो सकता है इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, हमें कभी उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। तो हमें आप क्यों हमारी साख को ख़राब कर रहे हो? आप बार बार आके सिर्फ कोटे के स्कूल को क्यों सील करते हो? और तालीम दुश्मनी का यहाँ तक कि बाकी सरगर्मियाँ चल रही हैं। हमारे साथ रेजिडेंशियल एरियाज़ में और बहुत सारी सरगर्मियाँ वो चल रही हैं और स्कूल्स को सील करते हैं। ये अच्छा, इस वक्त इम्तहानों की तैयारी का टाइम है, बच्चे कहाँ जाएँ? अच्छा एक मिनट सर, मैं इस बात को मज़ीद थोड़ा 2 मिनट आइए, इस बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। अभी हमारे जो जितने भी कंटोनमेंट्स है, कोयटा की स्पेशली, सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स टारगेट की गई हैं। अभी भी यहाँ पे NGOs के ऑफिसेज हैं, खुले हैं, आपके लाइब्रेरीज़ हैं वो खुले हुए हैं, आपके ब्यूटी पार्लर्स हैं वो खुले हुए हैं,
सिर्फ और सिर्फ टारगेट जो है स्कूल ही हैं। तो इसका भी मतलब ये कि कंटोनमेंट से पूछा जाए सिर्फ स्कूल से ज़िद ज़ातियात क्या ऐसी चीज़ है कि आप स्कूल से ज़िद कर रहे हो? ऐसा है सर, देखो सर, जहाँ पे फैसले गलत होते हैं ना तो ज़ाहिर हम मुर्दाबाद ही कहेंगे जब फैसले गलत होंगे। अब देखो आपके सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स हैं क्या वो 2.5 महीने तनख्वाह नहीं लेते हैं? हम इन टीचर्स को क्या करें? हम जिन बिल्डिंग्स में हम रह रहे हैं वो किराया देना होता है, हम वो किराए कहाँ से दें? फिर जब पेरेंट्स अगर हमें फीस न दें तो मेरे ख्याल में अगले साल फिर स्कूल तो नहीं रहेगा। तो अब इस तरह के फैसले जब आते हैं तो ज़ाहिर है फिर हम रिव्यू में जाते हैं। फिर अगर ये सब कुछ सरकार दे रहे हैं हम भी हाजिर हैं, हम भी देंगे। सरकार जब 2.5 महीने स्कूल बंद करते हैं तो बंद भी रहते हैं, उसके बाद जाके मार्च में उसका नया फिर सेशन स्टार्ट होता है, फिर वो चल पड़ते हैं। वेरी गुड। अब उनकी तनख्वाहें कितनी पता है सर आपको? 50,000 प्लस तनख्वाहें उनकी, वो मोर देन 1 लाख भी उनकी तनख्वाहें हैं। हमारी टीचर तनख्वाहें कितनी होती हैं? ये बच्चों की फ़ीस होती है, हम उस मुनासिबत से हम तनख्वाहें देते हैं। और हम अपने टीचर्स की यकीन करो हम 8 पीरियड भी उनसे काम कराते हैं। और सर मैं ऐसी टॉपिक को मैं आगे लेने से फिर मैं भूल जाऊंगा। ये जो आप कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी की जो फीस है ये हम लोग लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना के दौरान ये किया गया था। इसके अलावा कोर्ट की तरफ से ऐसे कोई भी आर्डर नहीं है कि आप ना लें। सिर्फ कोरोना के दौरान ये वो भी 20% हम लोगों ने डिस्काउंट देना था। इसके अलावा कोर्ट का ऐसा कोई भी आर्डर नहीं है। अगर सरकार अपने तालीमी इदारों को बहुत बेहतर करते और इसमें हर साल इजाफा करते, मेरे ख्याल में जो बच्चे हमारे पास आते वो उनके पास जाते, हमारे पास क्यों? और आज अगर फ़र्ज़ कर मैं एक खिदमत करने बैठा हूँ तो ज़ाहिर है मैं लैंडलॉर्ड तो नहीं हूँ, मुझ में सिर्फ एक जज्बा है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपने वतन के बच्चों के साथ मुझे लगाव है। मेरे जज्बा है कि मैं एक स्कूल खोलूँ और मैं बहुत सारे लोगों को खपाऊँ और मैं अपने बहुत सारे टीचर्स को तनख्वाहें देता हूँ। मैं आपका अनएम्प्लॉयमेंट में कम कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है मैं लैंडलॉर्ड तो हूँ कि मुझे 80% जो है ना अब भी स्कूल जो है किराए के बिल्डिंग्स में है।